pursuing my master's in vegetable science from ICAR IRI Jharkhand. So it's my first year going on. So welcome to my vlog. So in this vlog, I will be showing you our entire campus. Entire campus means our academic buildings and our guest house, our classrooms, labs and everything. Not the girls hostel because I have already made that video. If you haven't watched, then just go and watch it, okay? ICAR IRI Jharkhand, it is a hub of IRI Delhi, okay? So hub means you can say it as a sub-campus. You will be studying here, but the degree at the end, the degree which you will be getting will be of IRI Delhi. In that degree, it will be written that you have graduated from IRI Delhi, okay? ICAR IRI Jharkhand is a newly made institution. Like many of them has been commented in my videos, like why it is so much empty, they can't see much students, because the students are less here, because this is a newly established institution. So till now we don't have the BSc 4th year students. We have only BSc 3 years, okay, first year, second year, third year, and we have MSc 2 years, MSc first year and MSc second year. So we have only 5 batches here. So this 2025 one more batches will come and they will go for 4th year, okay? So day by day it will be increasing, and for the development we can say like we have only academic building for now. There only we used to go for classes and everything, and there only all the official works takes place, okay? So in the coming years, like in 3 or 4 years I guess, or 2 years also, because many buildings are being made, so in 2 years everything will be good. Like they are making auditorium also, and they are making one building in front of academic building, I don't know what, and then they in front of our hostel only they are making one shopping mall type, because this is a remote area, okay? So let me first tell you, this institution is in Gauriya Karma side, okay? So main road is far away from here, like it is about 20 minutes or something, and it is inside a remote place, so there is a transportation gap, transportation problem is there actually. So we don't have much shops to go nearby, okay? Like we don't have medicine shops, and we don't have shoe shops, we don't have cafes like that. Nearby only there is one Gauriya Karma Bazaar. I will be showing you that in this video, okay? So you can go there, it is near only, it will take 20 minutes by walking. We used to go there only by walking because we don't get transports like that, auto and that one. So it is a little bit problematic, but I think within 2-3 years it will be okay. So the infrastructure development is going on, and I think the place will also get developed. And before you watch this video, I need to tell you something. Like I am a little bit odd or awkward type, shy type of person, okay? Like I am a YouTuber. But I feel shy to make videos in front of crowd or in front of people, no? So this video you are going to see, it is a collection of mini videos. Like every day I used to go there and I used to see no people are there, I can make videos, and I have made videos like that only. So you will not see a video like of one day only, it is of several days I have made. I have just collected it together, okay? So I have given effort, so I hope you will enjoy this video, you will like this video. So let's go. हम लोग किधर जा रहे हैं? अंजलि स्टोर क्या करने? सामान लेने के लिए। सो वो वाला है हमारा हॉस्टल, और वो है हमारा फैकल्टी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एंड ये है एक गेट, वो है एक गेट। ओ वो वाला है गेस्ट हाउस, वाला है हम लोगों का बॉयज हॉस्टल, एंड दैट वन इज सॉरी कोई देख रहा था, एंड दैट वन इज गर्ल्स हॉस्टल, ओके? सो वो गेट से अभी हम लोग जाएंगे बाहर, और एक छोटा सा शॉप है अंजलि स्टोर्स बोल के, तो कुछ सामान जो स्टेशनरी वाला चाहिए होता है वो हम लोग को मिल जाता है। पूल किस लिए बना रखा है आई डोंट नो, वाटर हार्वेस्टिंग शायद, जो भी है वो जो देख पा रहे हो दैट इज़ आवर अनदर गेट, ओके? सो ये जो गेट आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला हमारा मेन गेट नहीं है, ये साइड का एक गेट है, कोई नंबर होता होगा मुझे नहीं पता। सो इस गेट से ही निकलते ही सामने ही वो दुकान है, और उसके आसपास में 1-2 और दुकान है, ठीक है? तो फिर उस दुकान में हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। एंड ये गेट आप लोगों का शाम के टाइम में खुला रहता है, जैसे कि 5 बजे से 7 बजे तक, अभी तो गर्मी है इसीलिए। एंड आप लोग भी जब इधर फर्स्ट टाइम आओगे तब आप लोगों को इधर से एंट्री करने के लिए नहीं देंगे, आप लोगों को मेन गेट से एंट्री करना पड़ेगा। और इस गेट से भी निकलते हैं तभी हम लोगों को एक रजिस्टर
में एंट्री करके ही निकलना पड़ता है। सो ये वाला है दुकान जिसमें कि हम लोगों को कुछ मिनिमल सा चीज़ें ये वो मतलब चल जाता है अभी के लिए। सो एंड बाकी जो चीज़ें लगता है वी जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन। सो इसके सिवा और एक वो समोसा वगैरह का दुकान है एंड इधर कभी कभी वो एक फुचका वाला भी आता है जो बहुत टेस्टी बनाता है फुचका, वो हम लोग कभी कभी खा लेते हैं। ओए हाय कर। आज हम लोग किधर जा रहे हैं बोल। आज हम लोग आम खरीदने हम लोग गए थे अंजलि स्टोर के लिए उस गेट से, तो आज हम लोग जाएंगे इस रास्ते से। तो आज तुम लोगों को देखने को मिलेगा हम लोगों का मेन गेट, वो था हमारा एकेडमिक बिल्डिंग। सो हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। हमारा हॉस्टल, फिर ये उधर से साइंटिस्ट का क्वार्टर, फिर दिस वन इज जो OSD सर उनका क्वार्टर, एंड ये सब अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो देख सकते हो हम लोग इस गेट से जाएंगे 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 एंड उधर होगा हमारा मेन गेट। वो भी है साइंटिस्ट का क्वार्टर, वो नया बन रहा है सब, वो सब भी कुछ एक टावर बन रहा है जो क्या है मुझे नहीं पता। तो ये वो है और एक गेट एंड वो वाला है उधर खेलते हैं वो लोग, और ये है हमारा जो एक बिल्डिंग जिसमें कि सब कुछ होता है अभी, क्योंकि बाकी बिल्डिंग्स नहीं है। एंड दैट वन इज आवर अदर गेट। सो इसके बाद ये है हमारा यूनिवर्सिटी का बस एंड इसके पास ही और एक कैंटीन है जो कि ज़्यादातर बंद ही रहता है क्योंकि स्टूडेंट्स उतने नहीं है तो फिर उतना इन लोगों का कमाई नहीं होता है। सो आई गेस जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तब आई गेस वो अच्छे से चलेगा। एंड इधर है हमारा एक छोटा सा नर्सरी टाइप का एंड दिस इज़ आवर मेन गेट। सो ये गेट से ही आप लोगों को घुसना पड़ेगा एंड इसमें से जब हम लोग निकलते हैं घुसते हैं फिर हम लोगों को इधर रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी के सामने ही है और एक बिरसा जो यूनिवर्सिटी है उसका एक बिल्डिंग टाइप का है, कुछ होता होगा। तो फिर उधर क्या है कि इधर बिरसा का बहुत सारा फार्म्स है, तो फिर इधर हम लोग को सस्ते में आम फ्रूट्स वगैरह मिल जाता है। तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं सस्ते में आम खरीदने। आपका बिरसा तो ये है KVK एंड उधर से है हम लोग का फार्म। हाय कर। ओए ये पुराना है सो हमारे कैंपस से ज़्यादा ये ज़्यादा सुंदर है। देखो मैं थोड़ा अपडेट बोल। बिरसा में आम नहीं मिला तो हम लोग अभी गौरिया कर्मा का जो मंगलवार बाजार होते हैं उसमें जा रहे हैं आम खरीदने। इतना दूर चल के, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं मिलता है इधर। ये देखो इतना दूर हमको चल के जाना पड़ता है, ऑटो वोटो कुछ नहीं मिलता है। हाँ गाँव ही है जा रहे। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये भी IRI का ही प्रॉपर्टी है, अभी पता नहीं काम क्या होता है। और कितना दूर जाना है लोइनो? वही पास नहीं है। से क्यों बोल रहे हैं पास में करके पूरा दिन लेके जा रही है। 500 मीटर जिस दिन बोलते थे कि दूर में जाएंगे उस पास में जाते से हाय। ओके हाय बाय। हाय हेलो की किने देखा मैंगो हम लोग को बहुत सस्ते में मिल गया इधर के हिसाब से। कितना मिला बोल? 25 रुपए पर किलो, 4 केजी पूरा लेके हम लोग अभी इतना रास्ता चलेंगे। Let's go। इतना मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ तो लाइक तो बनते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड
एंड शेयर। ये कमेंट भी कर देना प्लीज। हमको तो सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही खरीदना था, इसलिए हम लोग और सामने नहीं गए, लेकिन और सामने अगर हम लोग जाए तो फिर हम लोग को वो छोटा मोटा वो सब कुछ मिल जाएगा, लाइक शूज़, केमिस्ट शॉप, स्वीट एंड चाउमीन वगैरह का शॉप हम लोग को मिल जाएगा। अभी हम लोग को जाना है अंजलि स्टोर, तो हम लोग इधर एंट्री कर दिए, तो हम लोग इधर से नहीं जा सकते, तो दूसरे वाला रास्ता से, तो ये जो उस रास्ते से आए ना, तो इसका ये बैक है, देख सकते हो। तो इधर से जाएंगे ये वाला है हम लोग का एकेडमिक ब्लॉक, ये वाला है हम लोग का हॉस्टल, महुआ गर्ल्स हॉस्टल, वो जो ब्लू वाला है वो है आप लोगों का बॉयज़ हॉस्टल, एंड दैट थिंग वो है गेस्ट हाउस, एंड वो है मेरे फ्रेंड्स, एंड वो है गेट। लेट्स गो। सो ये वाला जो गेट दिख रहा है आप लोगों का, ये वाला भी मेन गेट नहीं है, ये वाला भी साइड वाला ही गेट है जो कि ज़्यादातर खुला ही नहीं रहता है। सो हम लोग तो अभी बाज़ार से आए, लेकिन हम लोग को और कुछ खरीदना था, सो हम लोग फिर से हम लोग अंजलि स्टोर जा रहे हैं। अंजलि स्टोर मतलब कि जो वाला पास में दिखाया था ना कल, जिस दुकान में गए थे हम लोग उसी दुकान में जा रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से, क्योंकि हम लोग मेन गेट से घुसे, मतलब कि एंट्री करके घुसे हैं ना, तो फिर डायरेक्ट हम लोग उस दुकान में नहीं जा सकते, तो फिर एंट्री करके अंदर आए, फिर इधर एंट्री करेंगे फिर से, एंड एंट्री करके हम लोग बाहर जाएंगे। ओके, एंड कल आप लोगों को दिखा दिया था, सो आज मैं फिर से आप लोगों को वो सेम दुकान नहीं देख रही हूँ। सो मीट यू नेक्स्ट डे। हाय, सो इट्स द नेक्स्ट डे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी क्लास करने। सो लेट्स गिव यू अ शॉर्ट टूर ऑफ आवर academic building. Whenever I will get time, when nobody will be there, I'll show you the academic building. Okay, let's go. It will be that. आने वाले हैं, ये हमारा academic block, इसमें हम लोगों का मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग, ऑफिशियल काम सब कुछ होता है इसके अंदर। सो इसके सामने ही और एक बिल्डिंग बन रहा है, जो कि आई गेस 2-3 सालों में ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग से हटके सिंगल पर्पज़ बिल्डिंग बन जाएगा बहुत जल्द। एंड देन वो जो आपने देखा कि इंडियन फ्लैग जैसा ये किया हुआ, वो मतलब हर तरह के सेलिब्रेशन में इधर जब होता है, इंडिपेंडेंस डे, लाइक फाउंडेशन डे, तो फिर इस बिल्डिंग को वैसे ही सजाते हैं। एंड दिस इज़ द इनसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग। सो ये एक बड़ा टाइप का एरिया है इधर ही, एंड लिफ्ट भी लगा हुआ है, एंड इसके सामने अगर जाएंगे वो सीढ़ी वाला जो दिख रहा है उसके ऊपर से ही जाने में हम लोगों को फिर क्लासेस मिल जाता है, लाइब्रेरीज, लैब्स एंड ऑल वो ऊपर मिल जाता है, ठीक है। नीचे सिर्फ वो ऑफिस का काम के लिए कुछ रूम्स है। एंड ये वाला है हम लोग को जो सामने सीढ़ी देखा था, उसी सीढ़ी से हम लोग चढ़ के ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। सो इधर ये बड़ा वाला एक एरिया है जो कि खाली ऊपर एक झूमर लगा हुआ है। एंड दिस इधर से ही ये देखो, इसके सामने अगर हम फिर से जाएंगे तो फिर ऊपर और भी क्लासेस एंड लैब, सॉइल डिपार्टमेंट ऐसा है। तो फिर नीचे ही आपका फ्रूट डिपार्टमेंट, वेजिटेबल डिपार्टमेंट, फिर जेनेटिक्स डिपार्टमेंट है। तो इधर आप लोग देख सकते हो कि साइंटिस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाते भी साइंटिस्ट ही है। एग्रीकल्चर फील्ड में साइंटिस्ट बनने के लिए एक बहुत टफ एग्ज़ाम होता है जो कि है ARS, जो कि एग्रीकल्चर का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। सो वो एग्ज़ाम कोई अगर क्वालिफाई कर देता है, देन आफ्टर दैट दे गेट अ जॉब कॉल्ड साइंटिस्ट। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं लैब। सो इधर आप लोग देख सकते हो कि पास 2 रूम्स है। जो वो दूसरा वाला रूम है उसमें आप लोगों का सब इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है, लाइक माइक्रोस्कोप्स एंड ऑल। एंड इधर है आप लोगों का खाली रूम, क्योंकि इधर सिर्फ वर्क करने के लिए है। तो फिर हम लोग को भी अगर कुछ काम दाम होता है या फिर लाइब्रेरी अगर पूरा फुल होता है तो हम लोग इधर आके पढ़ लेते हैं। सो ये वाला है वर्क स्पेस टाइप। एंड सो अभी भी ये लैब उतना फंक्शनल नहीं है, लेकिन दिल्ली के जब डायरेक्टर आए थे हम लोगों से बात किए थे, तो फिर हम लोगों ने अपना प्रॉब्लम्स बोला था कि ये सो आई गेस ये प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएंगे एंड ये लैब्स भी फंक्शनल हो जाएंगे। लोइनो बोलिए कौन सा क्लास है? अरे ये वेजिटेबल साइंस का क्लास है। वेजिटेबल साइंस का क्लास है क्या? हम लोग का क्लास है, घर से बोलते हैं इसलिए चलते, लेकिन ठंडा है तो और नहीं है।
सो दिस इज़ आवर लाइब्रेरी कम स्टडी रूम। सो अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो या व्लॉग्स देखा होगा सो पता होगा कि लाइब्रेरी एंड स्टडी रूम जो था वो अलग अलग था, लेकिन बाद में ये शिफ्ट किया गया है इधर बड़े हॉल में, एंड इधर कुछ कुछ कंप्यूटर्स भी है, एंड फिर हम लोग को अगर कुछ काम होता है तो फिर हम लोग इधर का कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। इस बार जब फाउंडेशन के टाइम पे IRI दिल्ली से आए थे तो फिर हम लोगों ने बोला था कि ज़ेरोक्स मशीन की ज़रूरत है, तो आई गेस कुछ महीनों में इधर ज़ेरोक्स मशीन आ जाएगा, सो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो दिस इज़ आवर 3rd फ्लोर। सो ये व्लॉग देख के आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट द वीडियो ऑफ सेम डे, तो हाँ इट्स अ वीडियो ऑफ डिफरेंट डे। सो जो नीचे से जो सीढ़ी स्टार्ट हुआ था तो उधर से अगर हम लोग 3rd फ्लोर पे आए तो हम लोग को दिखेगा ये सामने ही ये टेबल टेनिस एक, एंड देन इधर से इधर वो लिफ्ट जो नीचे वाला देखा था ऊपर यही कनेक्टेड है। सो आई गेस आप लोगों को पूरा पिक्चर हो रहा है कि कैसा है। सो इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो वो देखो ब्राउन कलर का वो है हम लोग का हॉस्टल्स, एंड आई गेस आप लोगों को सब पता चल रहा है कि कौन सा क्या है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारे बिल्डिंग में ऐसे प्लांट भी होते हैं और नए लोग कैसे बनाने के लिए हाय से हाय हाय। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर बॉयज हॉस्टल। आज क्या है डिनर में? ओह व्हाट इज फ्राइड राइस एंड मंचूरियन। वी डोंट नो हाउ इट विल बी। लेट्स स्टार्ट। ये देखो ये बॉयज हॉस्टल जिसके मैं अंदर नहीं जा सकती, मैं इसके अंदर जा सकते तो फिर वो दिखा सकते। सो हमारे गर्ल्स हॉस्टल में भी मेस है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स बहुत कम है, सो इसीलिए हम लोग जाते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। एक साथ गर्ल्स एंड बॉयज़ का एक साथ ही खाना होता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो फिर अगर हमारे हॉस्टल में अलग अलग ऐसे बनेगा तो फिर और ज़्यादा हम लोग को मेस फी देना पड़ेगा। अभी तो देना पड़ रहा है 3800, जो कि बहुत है। सो फिर से वीडियो देख के पता चल रहा है कि ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो मैं सुबह खाने गई थी तो फिर देखा पूरा खाली है, सो आई मेड दिस वीडियो। सो इधर के अगर साइड में देखेंगे तो एक छोटा सा ये करके है जिधर की कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम पहले मिलता था, अभी नहीं मिलता है। सो ये फिर से दूसरे दिन का व्लॉग है। हम लोग दोपहर को खाने गए थे। सो ये जो मिडिल वाला कैन है ना वो है नागा चिली, जो कि लोइनो नागालैंड से लाई है। फिर है वो है अनन्या, एंड वो है तमिलनाडु की मीनागा। सो हियर कम्स अनदर डे। सो आज हम लोग देखने वाले हैं गेस्ट हाउस। सो आज हम लोगों का एक फ्रेंड का बर्थडे था तो वही सेलिब्रेट करने हम लोग गेस्ट हाउस के सामने आए थे। सो इसी बहाने आई विल शो यू दिस गेस्ट हाउस। ओके, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल रहा है कि मैंने कितना एफर्ट दे के ये वीडियो मैंने बनाया। तो सिर्फ लाइक करके या ऐसे इग्नोर मार के मत चले जाना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सपोर्ट मी, शो योर लव। एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर। सो ये गेस्ट हाउस बहुत ही बढ़िया बनाया है। ओके, सो इधर रहने के लिए 1000 रुपया पर 1000 रुपीज़ पर नाइट ऐसा लगता है। एंड ये है आप लोगों का फ्लाई ट्रैपर टाइप का है, क्योंकि बहुत इंसेक्ट का बहुत प्रॉब्लम है। एंड देन उधर एक कॉफ़ी मशीन भी है, एंड ये वेटिंग एरिया टाइप का है। वो जो अंदर जो एक रूम टाइप का दिख रहा है ना और डोर वाला, उसके ही अंदर हम लोग घुसने वाले हैं। वो है आप लोगों का डाइनिंग एरिया टाइप। एंड इधर आस में साइड में देखेंगे तो इधर भी बहुत सारा रूम है, ऊपर भी रूम है। मुझे ये पूछने में थोड़ा ऑड लग रहा था, इसीलिए आई डोंट हैव द वीडियो और फोटोग्राफ्स ऑफ द रूम्स, बट हम लोग वो डाइनिंग के अंदर जा सकते हैं। तो ये है मेरी और एक फ्रेंड गाइनम लुकामाई, जो कि मणिपुर से है। तो हम लोग इधर आए हैं शो ऑफ करने एंड ओवर एक्टिंग करनी। हाथ धो के, मुझे नहीं पता कि वो मशीन हैंड ड्रायर टाइप का है, मैंने ये पहली बार देखा। सो आई वाज सो एक्साइटेड, तो मैंने शो ऑफ कर लिया थोड़ा। तो ये देखो ये वाला है। तो फिर इसके बाद हम लोग ऐसे ही नाटक करके बैठने जाएंगे। तो मैंने इतना ये करके उसके लिए चेयर खींचा, लेकिन वो जाके उधर बैठ गई। उसने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने उसके लिए रखा है। तो जो भी है, इधर हम लोगों ने थोड़ा ऐसा ही ओवर एक्टिंग किया। सो IRI दिल्ली से भी जब ऑफिशियल्स आते हैं या फिर कोई भी ऑफिशियल आता है एंड हमारे पेरेंट्स भी जब आते हैं तो वो लोग इधर रुक सकते हैं, जो कि ये 1000 रुपीज़ पर नाइट है। एंड ये वाला है डाइनिंग रूम बेसिकली, एंड ऊपर है बहुत सारा रूम्स। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस फार। सो अभी मैं आप लोगों का जो जनरल क्वेश्चंस होता है, जो कि मेरे कमेंट में बहुत बार आता है, सो आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट, इधर एडमिशन कैसे लेते हैं? UG हो या PG हो, इधर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है। ओके, जो JRF का ICR का जो एग्जाम होता है JRF, इधर ओनली JRF के थ्रू ही आप आ सकते हो। JRF में आप लोग का रैंक होगा, रैंक अच्छा होगा तो फिर आप लोग जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो फिर चॉइस फिल करके इधर आ सकते हैं। ऐसा अलग से कोई एडमिशन का ये नहीं है, बोथ फॉर UG PG ये होता है। ठीक है, इधर अभी भी PhD का ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड फॉर पहले UG का प्रॉब्लम्स का हम क्वेश्चंस का हम लोग आंसर बोलेंगे। सो पहला वाला है एडमिशन, तो मैंने बोल दिया। एंड UG के बहुत बच्चे पूछते हैं कि इधर क्या नीट के स्टूडेंट्स हैं, तो हाँ इधर बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नीट में तो बेसिकली ट्राई करते हैं। उसके बाद वो लोग ICR भी एज अ बैकअप एग्जाम देते हैं। तो फिर अगर नीट का प्रिपरेशन होगा तो फिर ICR का तो एग्जाम निकल ही जाएगा ना। सो
इधर ज़्यादातर वो हाई रैंक नीट स्टूडेंट्स इधर ही आके मतलब होता है, ठीक है। इधर ही बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स हैं एंड इधर आके भी वो लोग प्रिपरेशन करते हैं। एंड मुझे एक कमेंट आया था कि इधर क्या नीट का प्रिपरेशन हो सकता है ऐसा, तो फिर हम लोग का तो शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, लेकिन सुबह से हम लोग का 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग का क्लासेस का पूरा ये रहता है, ओके। सो उसके बाद आप लोगों को टाइम निकाल के आप लोगों का प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। मतलब मुझे तो लगता है कि आप लोग जिधर भी रहो प्रेशर तो रहेगा ही, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो, क्योंकि अभी भी बीएससी वालों ने बहुत लोग हैं जो एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं। हम जो है हम लोग का बिजी शेड्यूल है, तो फिर हम लोग का भी रिसर्च शुरू होगा अभी, लेकिन फिर भी वी मेक आवर टाइम फॉर द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, नो। सो वो आपके ऊपर पूरा है कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। एंड उसके बाद है कि इधर का क्या नॉर्मल कॉलेज लाइफ है। सो नहीं, नॉर्मल कॉलेज लाइफ नहीं है, क्योंकि जो आप एक ड्रीम करते हैं ना कि मेरा कॉलेज लाइफ ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ये उधर उतना नहीं होगा, क्योंकि ये आपका रिमोट एरिया में है बेसिकली। तो रिमोट एरिया में है, इसीलिए आसपास का इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए इधर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। सो रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से इधर आप लोगों को वो बाहर जाने में या फिर इधर आसपास भी उतना कुछ नहीं है ना। सो कैफेज या फिर इधर ये भी नया इंस्टीट्यूट है, सो इधर भी उतना कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं होता है, ओके। सो मैं जैसे कि बीसीकेवी से आई हूँ, तो फिर मैं तो इधर उधर घूमने जाती थी। फिर कॉन्सर्ट होता था, जो एक बड़ा जो इस्टेब्लिशमेंट होता है ना कि आप लोग इधर घूमने जा रहे हो, कॉलेज लाइफ में कैफेज है, फ्रेंड्स के साथ टूर में जा रहे हो, ये वो। सो इधर वो उतना पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी आगे जब ये डेवलप होगा तब अगर हो सकता है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इधर उतना नहीं होगा। एंड देन उसके बाद आता है कि हाँ, इधर एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब पूछा था कि इधर क्या प्लेसमेंट सेल है। तो फिर पहले नहीं था, क्योंकि थर्ड ईयर लोग अभी भी फोर्थ ईयर में नहीं गए थे, तो ऐसा नौबत नहीं आया था। सो अभी तक प्लेसमेंट सेल नहीं था, लेकिन इस बार जब फाउंडेशन के टाइम में जब IRI दिल्ली से आए थे, तो फिर हम लोगों को पूछा था एंड उधर डिसाइड हुआ कि एक प्लेसमेंट सेल भी बनेगा। सो प्लेसमेंट सेल बनेगा। एंड उसके साथ साथ एक क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी इधर है कि नहीं। सो एक बार इधर से हुआ था कि IRI को रिप्रेजेंट करने के लिए हब से भी गए थे। सो आई थिंक ये वाला इंक्रीज होगा। एंड अभी है कि हाँ, अभी तो हब्स बैंड हो चुके हैं। सो सॉरी, बैंड्स नहीं, मतलब कि जो भी है, मतलब हब्स में ज़्यादातर हब्स में यूजी का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। सो आई गेस अभी वो लोग झारखंड में बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि यही तो रह रहा है ना, दिस वन एंड आसाम। सो आई गेस ये लोग बहुत ज़्यादा इधर इंपॉर्टेंस देंगे एंड इट विल इम्प्रूव। एंड यूजी, हाँ, अगर आप यूजी में हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगा। सो यू विल गेट 3000 रुपीज़ स्कॉलरशिप, जो JRF का मिलता है। सॉरी, यूजी में जो CUT से, हाँ, इधर CUT के थ्रू एडमिशन लेते हैं ना यूजी वाले, तो फिर उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है। एंड ये IRI का इंस्टीट्यूट है, तो IRI अपने स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप भी देता है। सो यू विल गेट दैट। एंड इधर ये जैसे कि रिमोट एरिया है, तो आसपास में जोमेटो इज़ नॉट अवेलेबल। सो जोमेटो तो नहीं आता है क्योंकि अंदर का है, लेकिन कुछ है जैसे कि वन बाइट, वो उधर से आ जाता है ऑर्डर, या आसपास की दुकान से वो ऑर्डर देके जाते हैं। एंड किसी का बर्थडे हो तो फिर केक में भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग देके जाते हैं। सो एंड उसके बाद हाँ, Amazon, Flipkart एंड मीशो, दीज आर ऑल आर अवेलेबल, ओके। और एक क्वेश्चन था यूजी लोगों का कि इधर साउथ पीपल है कि नहीं कर्नाटका, तो फिर उतना टेंशन मत करो, इधर सब जगह से है। कर्नाटका, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर तुम्हारा आसाम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सब जगह से है। पूरा इंडिया भर के इधर है। सो फिर ये ऐसा मत सोचना कि मैं जाऊँगा तो फिर मेरा पार्टनर कोई नहीं रहेगा। नो, यू विल गेट सीनियर्स भी मिलेंगे एंड क्लासमेट्स भी मिल जाएंगे। सो नो नीड टू टेक टेंशन, क्योंकि मेरे ही ये फ्रेंड है, मतलब कि क्लासमेट्स है, बैचमेट है, जो कि तमिलनाडु से आई है। सो इधर तो आके उसको तो प्रॉब्लम होगा ही ना, मतलब कि खाना तो डिफरेंट है उन लोगों का, रसम, फिर टोमेटो राइस, टैमरिन राइस, ऐसा करके कुछ होता है, तो खाना तो प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन ब्रेकफास्ट में हम लोग का इडली, डोसा, ये सब देते हैं। सो वो तो MSc में ही है, दो साल रहेगी, तो उतना उसको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है। एंड बाकी लोग भी रह रहे हैं, सो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब जिधर भी जाओगे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। सो नाउ कमिंग टू द PG, ओके। सो PG में ये लोग जो डिपार्टमेंट है इधर जो ऑफर करते हैं, वो है आपका वेजिटेबल साइंस, जो कि मैं हूँ, फिर आपका फ्रूट साइंस, फिर उसके बाद आता है सॉइल साइंस, एंड देन है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। अभी तक के लिए सिर्फ ये 4 ही डिपार्टमेंट्स इधर मिलता है, ओके। सो इसके बाद सीट MSc में अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आप लोग ये जान लीजिए कि यूजी में ही होता है कि इतना सारा सीट जो आप लोग को मिलता है ना कि 45, 90 ये सब, लेकिन PG में नहीं होता है ये। PG में एक इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक डिपार्टमेंट से 5 स्टूडेंट्स लेंगे ऐसा करके, या 4 स्टूडेंट्स लेंगे ऐसा करके ही होता है। तो फिर जो IRI दिल्ली भी है उसमें भी अगर मैं वेजिटेबल साइंस का देखूँ तो फिर 5 सीट या 4 सीट ऐसा करके रहता है, ओके। सो इधर जैसे कि हमारे वेजिटेबल साइंस में सिर्फ 5 स्टूडेंट है, फ्रूट साइंस में सिर्फ 5 स्टूडेंट है, फिर सॉइल साइंस में है 4 स्टूडेंट, एंड देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में है 5 स्टूडेंट। सो इतना ही, मतलब 5 स्टूडेंट ही तो है ना, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर इतना
कम स्टूडेंट्स क्यों होता है, क्योंकि एमएससी में जब आप आते हो ना, तो फिर एमएससी में आके आप लोगों को रिसर्च करना पड़ता है। मतलब कि एमएससी का यही है कि आप लोगों को रिसर्च करना पड़ेगा। तो फिर एक एक को गाइड अलॉट करते हैं। तो एक गाइड मतलब कि कोई प्रोफेसर या साइंटिस्ट, इधर साइंटिस्ट है तो फिर हमारा गाइड तो साइंटिस्ट ही होगा ना। सो आवर गाइड, हम लोग को एक गाइड को सिर्फ 2 ही स्टूडेंट मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स 2 स्टूडेंट्स मिलेगा। सो एक इंस्टीट्यूट में अगर 2 साइंटिस्ट है तो फिर 2 करके 4, तो 4 ही स्टूडेंट ना आएंगे। तो फिर ऐसा करके इसीलिए एमएससी में सीट्स बहुत कम होते हैं एमएससी पीजी लोगों का। ओके, एंड इधर सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ के थ्रू ही आप आ सकते हैं। सो इधर स्कॉलरशिप की बात करें तो जेआरएफ के थ्रू आप लोगों को तो जो मिलता है 12,600 वो मिलेगा, या फिर वो अगर आपको नहीं मिलता है तो एनपीएस से जो मिलता है 5,000 रुपया वो मिल सकता है। लेकिन आप IRI में पढ़ते हैं तो फिर इसीलिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। सो IRI अपने स्टूडेंट्स को वो 7,000 रुपीज़ देता है। सो मेरी एक फ्रेंड है तो फिर उसको एनटीएस मिल रहा था 5,000, लेकिन उसको IRI में है तो फिर उसको वो 7,000 वाला मिलेगा। ओके, सो इधर अगर हम बात करें कि लैब फैसिलिटी, तो मैंने वही डिस्कस किया था कि लैब है लेकिन उतना फंक्शनल नहीं है। सॉइल लैब इज़ ओके, सॉइल वालों का लैब अच्छा है, लेकिन जो बाकी जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जो है आपका बोला है कि अब फंक्शनल हो जाएगा, अब देखते हैं। एंड इधर का जो है ICR का ही और इंस्टीट्यूट्स है ना इधर आसपास, RCR पलांडू, फिर वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, रिसर्च विजिट टू रिसर्च स्टेशन करके है वो RCR पलांडू, फिर IIB, ये जो है इसमें कि इधर से स्टूडेंट्स भेजते हैं। तो ऐसा करके मतलब रिसर्च वर्क चलता है, क्योंकि हम लोग को तो रिसर्च करना है ना, तो फिर लैब चाहिए होता है। सो उधर से कनेक्ट करके मतलब कि एमएससी की स्टूडेंट्स उधर जाते हैं रिसर्च करने, ऐसा सेकंड ईयर में। तो फिर क्योंकि हम लोग का फर्स्ट ईयर में होता है एग्जाम्स एंड ऑल एवरीथिंग खत्म हो जाता है, एंड सेकंड ईयर में हम लोग को रिसर्च करने जाना पड़ता है। सो हम लोग है एमएससी के, हम लोग ऑलरेडी बीएससी में बहुत मजे कर चुके हैं। सो इधर उतना मजा भी नहीं हो तो फिर हमें कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो इसके बाद आता है कि एंड है कि अगर आप लोग साउथ के हो तो फिर इधर आके आई थिंक आप लोगों को फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि हमारा कॉलेज तो बहुत उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था। सो वी वर ओके, लेकिन मेरी जो एक तमिलनाडु वाली फ्रेंड थी वो TNU में पढ़ती थी, तो फिर उन लोग का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था, ताकि हॉस्टल में गेट लगा देते थे, सैटरडे संडे भी बाहर हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते, ऐसा करके बहुत कुछ था। तो फिर उसको इधर आकर उसको फ्रीडम लगता है कि वो बहुत फ्री है, वो इतना चिल रहते बहुत फ्री है। सो ये डिपेंड भी करता है कि साउथ को पीपल इधर आके उन लोग और ज़्यादा हो गए, उन लोग और ज़्यादा फ्री लगे। ओके, सो ऐसा होता है। एंड दिस वीडियो नाउ वी हैव केम टू द एंड। ओके, सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करने वाली हूँ कि एज अ सीनियर, एज अ दीदी, आई एम गोइंग टू सजेस्ट लाइक इफ यू आर कमिंग टू दिस इंस्टीट्यूट, सो genuine advice, so please bring blankets. Okay, so क्योंकि this place is the temperature goes really down, so बहुत ठंडा होता है इधर, so you need to bring blankets like to keep yourself warm. Okay, and then bring umbrella also, क्योंकि here every time the wind blows. Okay, whether it be summer, winter, rainy season, each and every time the wind, and that wind speed is very high. Okay, मतलब कि उसके वजह से हम लोगों का सबका छाता टूट चुका है। छाता लाना, स्ट्रॉन्ग वाला लाना, ठीक है। एंड उसके बाद मेडिसिन भी लाना, क्योंकि अभी तक तो इधर नहीं मिलता है, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक अगर आपका कुछ है तो फिर मेडिसिन लाना, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमिंग दिस फार, एंड प्लीज सपोर्ट by subscribing to this channel and comment कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मीन्स आई हैव गिवन एफर्ट, तो अगर आप लोग रेसिप्रोकेट नहीं करोगे तो फिर मुझे भी बहुत लो लगेगा कि कितना इतना मेहनत क्यों किया मैंने। सो प्लीज़ ऐसे ही आप लोग इग्नोर करके मत चले जाना। एंड अभी तो मैं एमएससी की फर्स्ट ईयर हूँ, तो ये सितंबर महीने से मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मेरा रिसर्च स्टार्ट होगा। सो फ्रॉम सेकंड ईयर आई विल बी रिकॉर्डिंग माई रिसर्च डे टू डे लाइफ। सो इफ यू आर एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट यू कैन रिलेट टू मी, सो join me in this journey. Okay, and bye bye, take love.